Welcome student in new session which start too late due to COVID-19 pandemic. I am Dr. Sangeeta Srivastav, Head Department of Zoology, going to start your fourth paper named Biology of Vertebrate Immune System. That is Immunology. Here is a book, Immunology by Kube, The Immune System, Peter and Parham, and Indian writer Immunology by S.S. Lal and S. Kumar, and it's your syllabus. So first of all, what is immunology? Immunology is the branch of medicine and biology concerned with the immunity. Next question, what is immunity? So immunity is a Latin term, immunis. It comes from the term immunis, I-M-M-U-N-I-S. Immunis means exempt. Exempt, E-X-E-M-P-T, exempt. It means free from any things up here, free from infectious diseases. So immunity is a state of protection from infectious diseases. In other words, immunology is a branch of biology that concerns the study of immune system in all organisms. So what is the immune system? The immune system is the body's defense against infectious organism and the invaders. So next, in detail study according your syllabus. So first topic of your syllabus is innate and acquired immunity. So innate immunity, what is this? It is a first line and second line of defense which included in this. So innate immunity, that is non-specific host defenses that exist prior to exposure to an antigen and involve anatomic, physiologic, endocytic and phagocytic and inflammatory mechanisms. Here is a summary of innate immunity. There is a anatomic barrier, as anatomic barrier, for example, skin, mucous membrane, that behave as an anatomic membrane, and physiological barrier are chemical barrier, temperature, low pH, chemical mediators behave as a physiological barrier or chemical barrier. Next is the phagocytic cells. These cells, number of cells, monocytes, macrophages, dendritic cells, number of phagocytic cells involved in the innate immunity, and inflammatory barrier is another response of innate immunity. In inflammatory response, there is function of inflammatory. इसमें एक्चुअली आपको ये शो किया गया है कि there is a this is the blood vessels. This is the blood vessels. ये आपका blood vessels शो किया गया है. यहाँ जो है आपका ये इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टिश्यू इंजरी, ड्यू टू द इंजरी देयर इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. इस इन्फेक्शन की वजह से ये बैक्टीरिया इंटर कर रहे हैं, ये दिख रहा है आपको. और उसके बाद जस्ट आफ्टर द entry of bacteria in the tissues, there are different steps of reactions. तो step first, step second, step third, step 4, ये हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे जब आपके एक एक टॉपिक लिया जाएगा. तो ये हमारी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है जो कि यहाँ से इंड्यूस करते हैं हमारी मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स को, और न्यूट्रोफिल्स जो है अपने ये डायपेडेसिस शो कर रहा है, एंड देन दे रीच ऑन द लोकल डैमेज टिश्यू पार्ट, and there is secretion of also chemicals. All chemicals and cells together involved in the phagocytosis and decaying of the killing of the bacteria. That's okay. Next is the adaptive immunity. So what is this adaptive immunity? Adaptive immunity is also known as acquired immunity.
Host defenses are mediated by B and T cell following exposure to antigen, and that exhibit specificity, diversity, memory and self and non-self recognition. मेन जो एडॉप्टिव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है वो या इम्यूनिटी हमारी है, वो मेनली क्या कहती है, दैट इज़ द स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिक जो रिस्पॉन्स है हमारी सेल्स की, जैसे आप फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इज़ द पार्ट ऑफ इननेट इम्यूनिटी, थर्ड line of defense, that is the acquired immunity. So here point shows that is the antigenic specificity. It means कि यहाँ पे पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है रिस्पॉन्स करेगी बाह्य फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज आर पर्टिकुलर सेल्स. डाइवर्सिटी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच इन्वॉल्व हियर. Next is the memory. This memory cell, formation of memory cells, ये बहुत ही important point है adaptive immunity में कि anyhow अगर हमारा जो इम्यून सिस्टम इंड्यूस हुआ है और उसमें हमारी जो सेल्स इन्वॉल्व होंगे, दैट में बी हिमोरल रिस्पॉन्स आर द सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, तो उसमें चाहे कुछ भी हो बट हमारी जो सेल्स होंगी वो मेमोरी सेल्स ज़रूर होंगी. वहाँ प्रोलिफरेशन जो होगा, एक फॉर्मेशन जो होती है वो मेमोरी सेल की होगी इन मेनी वेज, चाहे वो साइटोटॉक्सिक सेल की जो है मेमोरी सेल्स फॉर्म हो रही हों या फिर बी सेल्स के लिए हमारी मेमोरी सेल फॉर्म हो रही है एंटीबॉडी फॉर्मेशन के समय. अनदर इज़ द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. सेल्फ एंड नॉन सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी एक बाहर से हम फूड लेते हैं, बाहर खाते हैं, फॉरेन भी है बाहर के, बट ये हमारी बॉडी जो एंटीबॉडीज़ है या रिस्पॉन्स जो हमारे इम्यून सिस्टम का है, दैट इज़ अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल. फॉरेन मीन्स, फॉरेन क्या है, ये हमारी बॉडी रिकग्नाइज करती है कि वो कोई मॉलिक्यूल, कोई पैथोजन हमारी बॉडी के लिए वो सुटेबल है और नहीं है. तो सेल्फ और नॉन सेल्फ, जो सेल्फ है उसे रिकॉग्नाइज कर लेती है, वो हमारे लिए हार्मफुल है. जैसे हमारे जो एंटीजेंस हैं मोस्टली दे आर फॉरेन एंड लार्जर मॉलिक्यूल्स. तो हमारी बॉडी में भी लार्ज मॉलिक्यूल है लाइक प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, बट दे आर नॉट एंटीजन. बट एंटीजन वो होंगे जो हमारे लिए जो है वो एक सेल्फ नहीं है, नॉन सेल्फ है, दे आर नॉन सेल्फ. तो कोई भी लार्ज molecule that are foreign and other properties which are decided by the body cells that recognize self or non-self. तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एडॉप्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो सेल्फ और नॉन सेल्फ के रिकग्निशन है कि वो मॉलिक्यूल या कोई पैथोजन हमारी बॉडी सेल का पार्ट है या फॉरेन पार्टिकल्स. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज द सेल्स, नंबर ऑफ cells and tissue which involve in our immune system. So here the cells which are formed from the stem cells, ये हमारी जो cells की formation होती हैं, hemopoietic stem cells which produce myeloid cell lymphoid progenitors. आपने पढ़ा होगा पहले भी कि granulated and agranulated cells in case of WBC formation. ठीक है. तो हमें यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ सेल्स हैं, ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, प्रोजेटा, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मेगाकैरियोसाइट्स, ये आपके नंबर ऑफ जो सेल्स हैं इन्वॉल्व इन इम्यूनोलॉजी. एंड लिम्फॉइड प्रोजेनेटर से बेस्ड जो सेल हैं, टी सेल, बी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल, दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच इन्वॉल्व इन द इम्यून सिस्टम. एंड हियर कॉमन B cells which is very important. Here there is a proliferation of B cell. So B cell which originated from the stem cell. Stem cells give the B cells. So here gene rearrangement
and there is the formation of mature B cell. Mature B cell have a antibody on their surface. So एंटीबॉडी उसके सरफेस पे हमें जो मिल रहा है, ये आप देखिए, दे एक्ट एज ए रिसेप्टर. यहाँ जो एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस है वो मैच्योर सेल से अटैच्ड है. अभी इस कंडीशन में हमें जो दिख रहा है, एंटीबॉडी अटैच विद द B cells. So there is a condition where is the maturation of B cells. And next step, mature B cells which give response to antigens. Then एंटीजन डिपेंडेंट प्रोलिफरेशन. ये जो प्रोलिफरेशन है आपको इधर जो दिख रहा है, दैट इज मैचुरेशन है इनटू मैच्योर एंटीजेनेटिकली कमिटेड बी सेल्स. और यहाँ जो है हमारा इस साइड में आपको दिख रहा है एंटीजन डिपेंडेंट प्रोलिफरेशन. तो ये हमारा, ये देखिए, इस केस में हमें देखिए कि ये आपका व्हेन एंटीजन attached with the B cell, it means antibody which attached with the B cell behave as a receptor for the antigen, and after the attachment of antigen with the antibody there is a proliferation. So here antigen dependent proliferation and differentiation of the plasma and memory cell. तो रिज़ल्ट क्या होता है, जब किसी भी एंटीजन का अटैचमेंट बी सेल से होगा तो यहाँ प्रोलिफरेशन होगी, और दीज प्रोलिफरेशन गिव फाइनली देयर इज़ अ नंबर ऑफ एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स, एंड ऑल्सो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. मैंने बताया था कि एडाप्टिव इम्यून सिस्टम में मेमोरी सेल फॉर्मेशन मस्ट है. तो यहाँ हमें देखिए कि ये एंटीबॉडी जो है फॉर्म हुई, दैट इज़ फॉर्म बाय द प्लाज्मा सेल. ये आपकी मैच्योर प्लाज्मा सेल्स हैं जो एंटीबॉडी फॉर्म कर रही हैं, एंड ये हमारी मेमोरी सेल्स. ठीक है, तो मेमोरी सेल की फॉर्मेशन मस्ट है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, दिस इज अ काइंड ऑफ सेल, lymphoid organs. This picture shows the lymphoid organ. ये हमें देखिए कि यहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो आपके, ये देखिए, ये हमारा मेन जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन आपको पढ़ना है. प्राइमरी एंड लिम्फॉइड मेन आपका जो है, आप देख रहे हैं कि हमारी बोन मैरो, जो बोन मैरो हमारा प्राइमरी है, थाइमस ये हमारे प्राइमरी उसमें होंगे. सेकेंडरी आपका जो है ये स्प्लीन और लिम्फ नोड. पूरी बॉडी में हमें अगर दिख रहा है तो आपको मिल रहा होगा कि ये जो लिम्फ नोड्स हैं, ये देखिए एक पूरा नेट दिख रहा है, नेटवर्क दिख रहा है यहाँ. ये लिम्फ नोड है, एक छोटे छोटे आपको ये दिख रहे हैं नोड जैसे, दीज आर लिम्फ नोड. ये हमारी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है. तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जिसको हम डिटेल में देखेंगे अपने जब नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमें आपको दिख रहा है, देयर इज़ ए इवोल्यूशनरी कंपैरिजन. इवोल्यूशनरी कंपैरिजन में हम देख रहे हैं कि यहाँ आपको एक ये लैम्प्रे जो एक साइक्लोस्टोम है, ये ट्राउट फिश है, ये फ्रॉग है, बर्ड है, एंड माउस है. तो ये आपकी जो सेल्स हैं ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ इम्यून सेल्स हैं. गाल्ट, थाइमस, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ नोड, जर्मिनल सेंटर्स, ये जो है आपको दिख रहा है. ये ओरिजिन जो है मैमल की है, ये बर्ड की है, ये एन्यूरेंस की है, ये टिलियोस्ट की है. सो ये हमें जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं. तो ये हमें शो कर रहा है कि इवोल्यूशनरी वे से हमारे जो इम्यून रिस्पॉन्स है कहाँ से डेवलप है. तो आप देखिए साइक्लोस्टोम्स, फिशेस में भी इम्यून रिस्पॉन्स जो गॉल्ट कर रहे हैं वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है. और टिलियोस्ट में भी आपको दिख रहा है कि टिलियोस्ट में थाइमस प्रेजेंट है. ठीक है, जो टिलियोस्ट में आपको थाइमस भी है और नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्प्लीन भी है. एंड फ्रॉग में आइए,
फ्रॉग में ए न्यूरॉन्स में जब हम आ रहे हैं तो हमारे गाल्ट भी मिलेगा, थाइमस भी है, स्प्लीन भी है, बोन मैरो भी है। एंड नेक्स्ट बर्ड्स में आइए, बर्ड में हमें जो है क्या है, लिम्फ नोड्स एंड जर्मिनल सेंटर्स भी। तो ये सभी हैं, मतलब ये बर्ड्स और मैमल में आपको गाल्ट, थाइमस, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, जर्मिनल सेंटर, ये आप सारे जो है आपको मिल रहे हैं इन केस ऑफ। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है मोस्ट सिग्निफिकेंट इन बर्ड एंड मैमल, ये हमें आपको दिख रहा है। तो ये बर्ड और मैमल में ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एज ए गाल्ट, थाइमस, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फॉइड नोड्स, जर्मिनल सेंटर एट्सेट्रा। बट इन अदर केसेस आपको थोड़े से लेस डेवलप स्ट्रक्चर मिलेंगे, जैसे आपको साइक्लोस्टोम में सिर्फ गाल्ट मिलेगा जो पैचेस फॉर्म में इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन के पास। फिश में आपको जो है 3 थिंग्स मिल रही हैं, गाल्ट में मिल रहा है, थाइमस भी है और स्प्लीन भी है। फ्रॉग में आपको 4 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, गाल्ट, थाइमस, स्प्लीन, बोन मैरो। एंड बर्ड और मैमल में हमें वो सारे सिस्टम मिल रहे हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, दैट्स ओके। देयर इज़ अ इवोल्यूशनरी, ये आपका कंपैरिजन है, इवोल्यूशनरी कंपैरिजन है ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स। दिस इज़ द next is the antigen. So what is antigen? This is the definition or brief explanation of antigen. Antigen, that is the any substance, usually foreign, that binds specifically to an antibody or T cell receptor. Antigen is also known as immunogen, और हम इसकी डिटेल जब स्टडी करेंगे तो हम ये देखेंगे कि एंटीजेनिसिटी और इम्यूनोजेनिसिटी, जब हम कहते हैं कि एंटीजन इज़ ऑल्सो इम्यूनोजन, इन सिनोनिम्स ऑफ द एंटीजन इज़ इम्यूनोजन। तो कोई भी एंटीजन जब किसी भी सेल से बाइंड करता है, दिस इज़ द एंटीजन। ओके, व्हेन इट कम अटैच विद द बी सेल, देन बी सेल बिकम इफेक्टर सेल्स। This is the effector B cells. These proliferate into memory B cell and plasma. अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि एंटीजन डिपेंडेंट बी सेल्स जो एक मैचुरेशन हो रहा था, तो एंटीजन डिपेंडेंट, व्हेन एंटीजन बाइंड विद द बी सेल, मैच्योर बी सेल इज प्रोलिफरेट इनटू मेमोरी सेल, मेमोरी बी सेल एंड प्लाज्मा सेल्स. Okay, and when antigen attached with the T cells, it also proliferate differentiation of the effector T cells as a memory T cell and cytotoxic and T helper cells. ये सब हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब थोरो स्टडी करना होगा. नेक्स्ट इज द एंटीबॉडी. हियर इज द एंटीबॉडी attached with the surface, there is the T receptor and here free antibody. हमें ये, so first of all, what is antibody? As you know, antibody is a protein called immunoglobulin consisting of two identical heavy chains and two identical light chains that recognizes a particular epitope on an antigen and facilitate the clearance of that antigen. Simply हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे. ये आप देखिए, अगर एंटीजन एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, ये ब्रीफ स्ट्रक्चर हम आपको शो कर रहे हैं. व्हेन सपोज़ कि अभी हम लोगों ने देखा बी सेल में इम्यूनोग्लोबुलिन या आपके एंटीबॉडी अटैच सरफेस था जब मैच्योर बी सेल की, तो वहाँ पे ये क्या है आपका, ये ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन जहाँ पे ये अटैच्ड है, ये आपके हैवी चेन, ब्लू कलर शोज हैवी चेन एंड रेड कलर शो लाइट चेन, और ये हमारी एंटीजन बाइंडिंग साइट है. तो ये हमारा वेरिएबल जोन है और ये कांस्टेंट जोन है. ठीक, हमें थॉरो स्टडी करनी है इस. तो इन दिस केस देयर इज़ अ एंटीबॉडी अटैच विद द सरफेस ऑफ सेल्स. ओके,
एंड हियर फ्री एंटीबॉडी, ये आपका फ्री एंटीबॉडी है जो ब्लड में सीरम में फ्रीली मूव करेगा और कांटेक्ट में आएगा जब एंटीजन के, उसको वो डिस्ट्रॉय करेगा. सो देयर इज़ अ पार्ट, दिस पोर्शन इज़ अ वेरिएबल रीजन, दिस पोर्शन इज कांस्टेंट. एंड नाउ देयर इज़ अ कंपेरिजन ऑफ टी सेल रिसेप्टर. टी सेल रिसेप्टर को भी हम अगर बी सेल से कंपेयर करें, सो देयर इज़ अ अल्फा एंड बीटा चेंज इन टी सेल रिसेप्टर, एंड this is the antigen binding site as in antibody, surface antibody or antibody, and this part is variable region and this portion is the constant region. So very similar to the antibody attached with the surfaces. Okay, now MHC is very interesting structure. Generally MHC is the major histocompatibility complex, a complex of genes encoding cell surface molecules that are required for antigen presentation to T cell and for rapid graft rejection. It is called the H2 complex in mouse and the HLA complex in human. Actually complex is the जीन्स, ये जो है जो सरफेस प्रोटीन फॉर्म करेंगी, एक कॉम्प्लेक्स ऑफ जीन्स दैट फॉर्म द मॉलिक्यूल. दैट मॉलिक्यूल इज अ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल एंड दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल this one class MHC class 1 and MHC class 2. सो सेल सरफेस पे एक हमारी जो मॉलिक्यूल जिसके लिए नंबर ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगी वो एक प्रोटीन फॉर्म करेगी, और दिस वन इज MHC मॉलिक्यूल अटैच विद द सेल मेम्ब्रेन. दिस MHC molecule is a protein encoded by major histocompatibility complex and classified as class 1, class 2 and class 3 MHC molecule. Here there is only two structure, class 1 and class 2. ये बहुत ही important structure है और इसको हम लोग फिर डिटेल में स्टडी करेंगे. And next point is the cytokines. Cytokines is a molecule. ये भी आपकी जो है वो प्रोटीन है जो नंबर ऑफ सेल्स से सिक्रीट होंगी. इम्यून सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ साइटोटॉक्स. ये आपका साइटोटॉक्सिक जीन विच सिक्रीट प्रोटीन. जैसे है प्रोटीन सिंथेसिस आपने पहले पढ़ा हुआ है, सेम उसी से जो है एनी स्टिमुलस गिवन, इंड्यूस्ड स्टिमुलस, दिस वन इज व्हेन स्टिमुलस गिवन then cytokine genes activated and formation of molecule that is called as cytokines. And then these cytokines attack on the target cell because target cell have a receptor for particular molecule, और वो फिर इसमें conformational changes लाएंगे और फिर then this cell affect the biological function. Okay, तो ये हमारा एक जनरल होगा कि एक जो साइटोकिन्स प्रोड्यूसिंग सेल होंगी वो पर्टिकुलर जो टी सेल बी सेल जो है, हम इसका डिटेल बीच में पढ़ते रहेंगे जब हम लोग एक एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट. बहुत ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल. अभी आप लोगों ने इस कोविड-19 के केस में साइटोकिन स्टॉर्म की बात आती है कि इस केस में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ साइटोकिन्स जो है सिक्रीट होते हैं जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं. तो ये एक तरह से रेगुलेट भी करते हैं कि ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में जाएगी, हमारी इम्यून सिस्टम काम करेगा या सेल मीडिएशन में जाएगा. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर immune response है. तो ये cytokines which are protein molecule, okay, attached with the receptor and receptor are present on the target cell. When it attach, there is signal reached to the gene activation nucleus for the gene activation. When gene activated, there is a formation of number of enzymes and other things and biological effects. Okay, so these are cytokines. And next is another important structure is the complement system. complement, यहाँ हम एक डायग्राम है आपके को दिख रहा है. there is the complement system का एक प्रोटीन जो
C1 है। देयर इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, ये है, हम लोग फिर जब टॉपिक में आएंगे फिर डिटेल देखेंगे। ये C1 का स्ट्रक्चर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इन्वॉल्व इन द क्लियरेंस ऑफ द एंटीजन्स। किसी भी एंटीजन का जब एंटीबॉडी से अटैचमेंट होगा तो उसको टोटली क्लियर करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो है वो हेल्प करती हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया है तो उसकी वॉल को टोटली डिस्ट्रॉय करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व होंगी और डिफरेंट शेप फॉर्म करेंगी, तो मैकेनिकली उसको डिस्ट्रक्ट करती हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल हम डिफरेंट वे से पढ़ेंगे, जिसमें कि हम के डिफरेंट पाथ हैं जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जाते हैं। नाउ अब सारी इम्यूनोलॉजी के इंट्रोडक्शन में अगर हम, आपका लास्ट टॉपिक है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मीन्स कि ये हमारी आज की डेट में हम सभी लोग इससे फैमिलियर हो गए हैं, सभी लोग वेट कर रहे हैं कि हमारे कोविड-19 जो प्रॉब्लम है उसमें हमारा कोरोना वायरस, जो वेरी डेंजरस वायरस, जो कि मैन मेड भी है, इसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन है वैक्सीन क्रिएट करना। बट आज की डेट में हमारे साइंटिस्ट वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। दे हैव फुल्ली साइंटिफिक लेबोरेटरी एंड नंबर ऑफ famous scientists involved in this process, number of institutes involved in this vaccine formation. But जब कुछ भी नहीं था तब एडवर्ड जेनर ने ये काम किया। कंट्रीब्यूशन ऑफ जेनर जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो हम कभी भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये जो कंडीशन है कैसे स्टार्ट हुई, ये हम सभी लोग एक पूरी स्टोरी जानते हैं। तो एडवर्ड जेनर के लिए जितनी चीज़ें हम लोग जानते हैं, तो जब एडवर्ड जेनर छोटे थे तभी उन्हें, आज की डेट में हम सभी सिंपल खाली जितनी चीज़ें डेवलप हैं सिर्फ वही पढ़ रहे हैं, कुछ नया सोचने के लिए हम अपने को बाध्य नहीं कर रहे हैं। बट एडवर्ड जेनर जो बहुत छोटे थे तो एक स्टोरी उनके सामने आया करती थी कि जिसको काउ पॉक्स हुआ है उसे स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। स्मॉल पॉक्स बहुत उस समय तेज़ी से फैला था, एक पेंडेमिक था जैसे आज कोरोना वायरस का है। तो ऐसे केस में जब वो छोटे थे तो एक बहुत ही खूबसूरत सी लेडी थी जो कहा करती थी कि मुझे स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, मेरा फेस जो है वो अगली नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्मॉल पॉक्स जब होता था तो बहुत छाले जैसे निकलते थे और फेस पे हो जाता तो फेस में परमानेंटली जो है एक स्पॉट्स पड़ जाते थे और फेस बहुत अगली दिखता था। तो वो बहुत ही ये कॉन्फिडेंटली कहती थी कि मुझे तो काउ पॉक्स हुआ है और मुझे स्मॉल पॉक्स कभी नहीं होगा। ये बात जो है बहुत ध्यान से एडवर्ड सुना करते थे। फिर वो काफ़ी लंबे समय तक अपनी स्टडी किए और फिर जाके उन्होंने और डॉक्टर जब हो गए तब भी उन्होंने इस बात को भुलाया नहीं, क्योंकि स्मॉल पॉक्स तब भी काफ़ी परेशान कर रहा था, पूरी दुनिया में फैला था, पूरी महामारी से लोग परेशान थे। तब एडवर्ड जेनर ने एक फिर से काउ मिल्क मेड को देखा जिसे काउ पॉक्स हुआ था और उसके घाव से उसके पस को लिया और 8 ईयर के बच्चे के ऊपर जो है उन्होंने उसको स्प्रेड किया। तो ये रिज़ल्ट मिला कि वो स्मॉल पॉक्स जो बच्चे का है वो ठीक भी हुआ और टोटली वो क्योर हो गया बच्चा। तो इसके बाद से आफ्टर 7 वीक बाद उन्होंने फिर से यही एक्सपेरिमेंट और लोगों पे भी किया। तो नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक प्रोसीजर को अपने वैक्सीनेशन टर्म दिया। तो इम्यूनोलॉजी एक तरह से देखा जाए तो एक न्यू साइंस है, एक बहुत ही वंडरफुल वर्क है इसका। यूँ तो हम सब जान रहे हैं आज की डेट में, एवरीबडी नो दैट कि व्हाट इज़